Hello dear students of standard 9th. I Devang V. Thakkar today teach you the grammar of unit 6 My Childhood that was written by Dr. APJ Abdul Kalam. My dear students, today I am going to solve the grammar of unit 6. हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम में जो भी पेपर स्टाइल के हिसाब से ग्रामर पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू द पेपर स्टाइल द ग्रामर इज मेंशन हियर एंड टुडे आई सॉल्व द ग्रामर. Let's see vocabulary and grammar. Here question number 1, fill in the blanks choosing the correct words given in the brackets. Some of the words are given in the brackets. With the help of words, what you have to do is you have to fill in the blanks. The words are specific, inherited, emotional and certain. There are 4 words given here. The paragraph is every child is born with some blank characteristics. So which word is used here? So every child is born with some inherited characteristics. The first answer is inherited characteristics into a blank socio-economic, and the answer is into a, कौन सा वर्ड आएगा? into a specific. Answer is specific, socio-economic and blank environment. तो कौन सा environment आएगा? The answer is emotional environment. And trained in blank ways by figure of authority. And trained in, the answer is certain ways of figures of authority. तो यहाँ पे here there are 4 words given in the brackets. The words are not in a correct order. You should fill in the blanks with the correct order of words. ठीक है, इस तरह से वोकेबुलरी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सेकंड पैराग्राफ, द 4 वर्ड्स आर परमिशन, ऑप्टिमिज्म, हेड क्वार्टर्स, अनप्रेसिडेंटेड. इस 4 वर्ड्स का यूज़ करके आपको ये ब्लैंक को कंप्लीट करना है. तो देखते हैं हम. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन ब्लैंक ब्लैंक. The whole country was filled with an, फर्स्ट में आएगा unprecedented. Unprecedented फर्स्ट आंसर इज, एंड सेकंड में आएगा optimism. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission. I asked my father for permission. Third answer is permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarter. Headquarter in Ramananthapuram. So students, here some of the words are given in the bracket. You are using the correct words to fill in the blanks. यहाँ पे करेक्ट वर्ड का यूज़ करके ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. इस तरह की एक्सरसाइज पूछी जाएगी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज रेक्टिफाई द एरर्स इन द पैसेज. आपको पैसेज में ये जो एरर्स है उसको फाइंड आउट करके एरर यहाँ पे लिखनी है, करेक्शन यहाँ पे लिखना है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द एरर इन ईच एंड एवरी लाइन. आपको हर एक लाइन में से एरर को ढूंढना है. एरर को फाइंड आउट करके
एरर यहाँ पे लिखनी है, करेक्शन यहाँ पे लिखना है। तो सो लेट्स सी इट। द फर्स्ट लाइन, द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक ऑफ इन 39। तो इस लाइन में कहाँ पे एरर है? तो यहाँ पे ऑफ इज द एरर, यहाँ पे ऑफ नहीं आता, ब्रोक आउट आता है। तो आपको एरर में लिखना है ऑफ, और आंसर में करेक्शन में लिखना है करेक्ट आंसर इज आउट। ऑफ इज द करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर, ऑफ इज द एरर, और उसकी करेक्शन में आपको लिखना है आउट। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। यू हैव टू फाइंड, यू कैन सी दैट देयर इज अ मिस्टेक ऑफ प्रेपोजिशन, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939 वेयर आई वॉज 8 years old। वेयर नहीं आता, जब मैं 8 years का था। तो यहाँ पे वेयर इज द इनकरेक्ट आंसर, एरर इज द वेयर। जब मैं 8 वर्ष का था, टाइम बताता है, तो वेयर की जगह आपको प्रॉपर आंसर क्या लिखना है? वेन। वेन आई वॉज 8 years old। ठीक है। द सेकंड एरर इज वेन। इन प्लेस ऑफ वेयर we have to write down the correct answer when. For reasons I have never been able to understand, unable to understand ऐसा दिया है, unable is the mistake। तो unable की जगह आपको proper answer क्या लिखना है? able to understand। I have never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds। देखो स्टूडेंट्स, यू कैन फाइंड द मिस्टेक हियर। अ सडन डिमांड फॉर टमारिंड सीड्स एरप्ट इन द मार्केट। एरप्ट इज द मिस्टेक। यहाँ पे रॉन्ग वर्ब को यूज़ किया है, एरप्ट नहीं आता। एरप्ट का सही आंसर आता है एरप्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की मिस्टेक है। एरप्ट इज द एरर, एरप्ट की जगह आपको लिखना है एरप्टेड। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collecting the seeds। Students, used to के बाद रूट वर्ब भी आता है। collecting is the error। आपको collecting नहीं लिखना है, used to के बाद सिर्फ लिखना है collect। I used to collect the seeds but sell them to a provision shop। मैं सीड्स को कलेक्ट करने के बाद एंड, और मैं प्रोविजन शॉप में बेच आता था। तो बट इज द रॉन्ग प्रेपोजिशन यूज्ड हियर। यहाँ पे एरर, करेक्शन एरर है, बट कंजक्शन की एरर है। बट की जगह आपको क्या लिखना है? एंड। बट इज द रॉन्ग वर्ड, रॉन्ग कंजक्शन यूज्ड हियर। तो बट की जगह आपको एंड लिखना है। सो स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी लाइन what you have to do is you have to find out the error and rectify the error in the passage। rectify माने उसको correct करके आपको लिखना है। that is why error and correction। यहाँ पे आपको error and correction ऐसा करके आपको लिखना है। let's see the next paragraph। in the next paragraph, that is the same thing that we have to do here। what we have to do is we have to identify the error and write down the correct answer। second paragraph, after school we went home so told our respect parents। यहाँ पे so जो है वो इनकरेक्ट आंसर है, so is the error। so की जगह आपको प्रॉपर कंजक्शन लिखना है। स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद हम घर पे गए एंड टोल्ड, तो द करेक्ट आंसर इज एंड। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको क्या लिखना है? एंड। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्ट पेरेंट्स। रिस्पेक्ट पेरेंट्स नहीं आता, यहाँ पे रिस्पेक्ट इज द एरर। रिस्पेक्ट की जगह आपको प्रॉपर एडजेक्टिव लिखना है। प्रॉपर एडजेक्टिव इज, आंसर इज respective parents। proper answer is respective parents। after school we went home and told our
respective parents about the incident. लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर. यहाँ पे समन इज द इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो सिंपल पास्ट टेंस में है. देयरफॉर यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर ऑफ द वर्ब. यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, ये वर्ब की मिस्टेक है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज समन्ड. आपको करेक्ट आंसर क्या लिखना है? समन्ड द टीचर. लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर. एंड इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर इफ लिखा है. हमारी प्रेजेंस में टीचर को कहा कि, तो इफ जो है वो यहाँ पे रॉन्ग यूज किया है. इफ की जगह आपको क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स? इफ की जगह आपको क्या लिखना है? तो इफ की जगह आपको लिखना है दैट. इन अवर प्रेजेंस दैट टोल्ड द टीचर दैट he should not spread the poison in social equality. यहाँ पे इन जो है वो रॉन्ग प्रेपोजिशन यूज़ किया है. इनकी जगह आपको लिखना है ऑफ. he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance. सोशल इक्वालिटी लिखा है, इक्वालिटी नहीं आती, सोशल इनइक्वालिटी आती है. यहाँ पे इक्वालिटी इज द इनकरेक्ट वर्ड. इक्वालिटी का ऑपोजिट इनइक्वालिटी ऐसा लिखना है. He should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent child. चाइल्ड नहीं आता, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक है. तो चाइल्ड की जगह बच्चों आपको क्या लिखना है? चिल्ड्रन. इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. तो चाइल्ड की जगह आपको प्रॉपर चिल्ड्रन ऐसा लिखना है. ठीक है, तो इस तरह का आंसर हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन, थर्ड पैराग्राफ. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम टू अ मील. तो यहाँ पे वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम. टू अ मील नहीं आता, मील के लिए. तो टू की जगह हमें प्रॉपर प्रेपोजिशन लिखना है फॉर अ मील. तो यहाँ पे टू इज द मिस्टेक. टू की जगह आपको क्या लिखना है? फॉर अ मील. हिज वाइफ इज हॉरिफाइड. इज जो है वो इनकरेक्ट वर्ड है, एरर है. इसकी जगह आपको उसका पास्ट फॉर्म लिखना है. क्या लिखोगे? वॉज. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड. यहाँ पे इनवाइट जो है वो मिस्टेक है. इनवाइट की जगह आपको उसका पास्ट पार्टिसिपल लिखना है इनवाइटेड. पार्टिसिपल की मिस्टेक है. आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. तो टू डाइन इन हर रिचुअली, रिचुअल नहीं आता, वहाँ पे एडवर्ब का यूज़ किया जाता है. तो आपको लिखना है रिचुअली प्योर किचन. शी वॉज रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन. यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है? तो यहाँ पे लिखना है शी वॉज रिफ्यूज्ड. ऐसा नहीं आता, पैसिव वॉइस नहीं आता. वॉज रिफ्यूज्ड की जगह सिर्फ आपको लिखना है रिफ्यूज्ड. वॉज को निकाल देना है. वॉज रिफ्यूज्ड की जगह आपको रिफ्यूज्ड लिखना है. ठीक है, तो इन ईच एंड एवरी पैराग्राफ you are given 6 mistakes, and what you have to do is you have to correct the errors, rectify the errors. आपको जो एरर है उसको रेक्टिफाई करके लिखना है. ठीक है, तो दैट इज द रेक्टिफाई द एरर, और उसे हम क्या कह सकते हैं? एरर करेक्शन.
Okay, let's see the another question. Another question will be asked as fill in the blanks using articles, conjunctions and prepositions. Dear students, यहाँ पे आपको प्रॉपर आर्टिकल्स, कंजक्शंस एंड प्रेपोजिशंस का यूज करके ब्लैंक्स को फिलअप करना है. यू शुड कीप इन माइंड दैट डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रेपोजिशन, आर्टिकल एंड कंजक्शन आपको दिया नहीं जाएगा. मीन्स वो जो दिया नहीं जाएगा, आपको अपने हिसाब से प्रॉपरली कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस और आर्टिकल कहाँ कहाँ पे आता है उसका यूज करके लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आर्टिकल्स, कंजक्शंस एंड प्रेपोजिशंस बाय योरसेल्व्स. ठीक है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द. कंजक्शन माने दो वर्ड्स और सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए एंड, बट, और, सो, अदरवाइज ऐसा यूज़ किया जाता है. प्रेपोजिशंस जो होता है वो नाउन के आगे हम लिखते हैं ऑफ, एट, इन, बाय, दे आर कॉल्ड द प्रेपोजिशंस. तो इसका यूज़ करके हमको ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. तो लेट्स सी द आंसर. किस तरह का आंसर लिखा जाता है हम देखते हैं. When I visited his house next week. तो when I visited his house the next week, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ये नेक्स्ट वीक है वो जिसको डेफिनेट वर्ड, डेफिनेट नाउन कहा जाता है, उसके आगे हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं. तो when I visited his house the next week, Ayer's wife took me blank her kitchen. उसके किचन के अंदर मुझे ले गई, अंदर, इन. तो यहाँ पे इन जो है वो प्रेपोजिशन. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला जो है द वो आर्टिकल है, उसके बाद इन जो है वो प्रॉपर प्रेपोजिशन है. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ करके आपने ब्लैंक को कंप्लीट किया है. तो यहाँ पे हमने लिखा है इन हर किचन सर्व्ड मी फूड. तो उसके किचन में ले गई, एंड वो जो है वो प्रॉपर कंजक्शन है. एंड सर्व्ड मी फूड ब्लैंक हर ओन हैंड्स. उसने अपने हाथों से मुझे फूड है वो सर्व किया. तो यहाँ पे प्रॉपर प्रेपोजिशन क्या लिखा जाता है, विथ. विथ का यूज़ करके, प्रॉपर प्रेपोजिशन का यूज़ करके आपको ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करनी. तो लिखना है विथ हर ओन हैंड्स. ठीक है, तो फर्स्ट इज द प्रॉपर आर्टिकल इज यूज्ड. इन द सेकंड ब्लैंक्स वी आर यूजिंग द प्रॉपर प्रेपोजिशंस. In the third blank with the conjunction and is used, and in the fourth blank with can be used. है ना, इसका यूज़ करके हम ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं. लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ. ऑन होल द स्मॉल सोसाइटी रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड. तो क्या क्या लिखेंगे, ऑन द होल द आर्टिकल इज यूज्ड. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म. यहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है. इन टर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं. ऑफ द सेग्रीगेशन द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है. द सेग्रीगेशन ऑफ डिफिकल्ट सोशल ग्रुप्स. ठीक है, तो यहाँ पे पहले में द आर्टिकल लिखते हैं, फिर ऑफ रामेश्वरम लिखते हैं. वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट, DIFFERENT. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, करेक्ट कर देते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो द प्रॉपर आर्टिकल, of preposition, in preposition, of preposition,
द आर्टिकल ऑफ प्रेपोजिशन। तो इस तरह से प्रेपोजिशन और आर्टिकल एंड कंजक्शन का यूज करके हमें ब्लैंक को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। आपको एग्जाम में पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज ऐसा पूछा जाएगा। इन द क्वेश्चन यू आर गिवन द पैराग्राफ विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। आपको ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा, ऐसा पैसेज दिया जाएगा कि जिसमें कोई पंक्चुएशन नहीं होगा, मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर सेमीकोलन, कॉलन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ दिया नहीं जाएगा। लेकिन आपको उस पंक्चुएशन का यूज करके प्रॉपर आंसर लिखना है, प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क करना है। स्टूडेंट्स, पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स रखने हैं। लेट्स सी इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द पैराग्राफ। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? स्टूडेंट्स, ऐसे पढ़ोगे तो जैसे कोई प्रॉपर मीनिंग होगा ही नहीं। अगर आप प्रॉपर पंक्चुएशन रखोगे पैसेज में तो आप पूरा आंसर प्रॉपरली लिख पाओगे। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। आपको इस पैसेज में प्रॉपर पंक्चुएशन रखने हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको प्रॉपर देखना है। लेट्स सी इट। आंसर इज, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं आएगा। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। उसके बाद हमें कॉमा करना है, ये पंक्चुएशन। कॉमा करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। उसने कहा, तो जो भी कह रहा है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अब्दुल में कोई भी नाम का पहला वर्ड कैपिटल आता है, तो हियर कैपिटल इज यूज्ड। अब्दुल, कैपिटल मार्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पंक्चुएशन, तो अब्दुल ऐसा लिखा। फिर अब्दुल लिखने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखना पड़ता है क्योंकि वो एक्सक्लेमेशन है। अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। फिर उसके बाद फुल स्टॉप करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, दैट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वहाँ पे फुल स्टॉप करना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एंड अलोन विदाउट अ नेस्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है। तो इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन पूछना है, और जब भी कोई नया सेंटेंस शुरू होता हो तो वो कैपिटल में लिखना पड़ता है। फर्स्ट वर्ड इज द कैपिटल। द डज द सीगल, तो यहाँ पे कैपिटल करना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। सन का एस कैपिटल आता है। एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। एंड विदाउट अ नेस्ट, फिर क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया। हियर द सेंटेंस कंप्लीट विथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे जो जो पंक्चुएशन करोगे उस तरह से मार्क मिलेंगे।
एक पंक्चुएशन प्रॉपर, दूसरा पंक्चुएशन कैपिटल मार्क, तीसरा पंक्चुएशन फुल स्टॉप कैपिटल क्वेश्चन मार्क एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा हुआ। तो इस तरह से हम पैसेज को क्या कर सकते हैं, पंक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। इस तरह से आपको पंक्चुएट करके बच्चों लिखना। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, टर्न इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। हियर द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द पैराग्राफ ऑफ डायरेक्ट स्पीच विल बी गिवन टू यू। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ दिया जाएगा, उस डायरेक्ट स्पीच के पैराग्राफ को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन इज गिवन हियर, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, उसका हम आंसर इस तरह से लिखते हैं, गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट। यहाँ पे दैट कंजक्शन को लिखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए दैट कंजक्शन का यूज़ करना पड़ता है। फिर हम लिखेंगे इंडियंस, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड, वुड बिल्ड देयर ओन इंडिया, ओन इंडिया, फुल स्टॉप। इन गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट इंडियंस वुड बिल्ड देयर ओन इंडिया। इस तरह से हमें डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन बच्चों। सेकंड पैराग्राफ इज गिवन हियर। द क्वेश्चन इज, he told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ दिया है, उसका हम आंसर लिख रहे हैं। किस तरह से आंसर लिखोगे, तो देखो इस तरह से आंसर लिखा जाता है, he told me as if thinking aloud that, I की जगह लिखना पड़ता है he knew, I की जगह he लिखेंगे, नो का पास्ट फॉर्म न्यू लिखेंगे। he knew, you माने मुझे कहा, तो I हैव टू की जगह उसका पास्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, आई हैड टू गो अवे टू ग्रो। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है इसलिए लिखना पड़ेगा ही ऑल्सो आस्क्ड मी इफ द सीगल डिड नॉट, और डज नॉट भी लिख सकते हो क्योंकि वो सेंटेंस जो है उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। ही डज नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन alone and without a nest, and without a nest। फिर उसको फुल स्टॉप करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट स्पीच फुल स्टॉप के अलावा कोई भी पंक्चुएशन का यूज़ नहीं करते। वी हैव टू मेक द assertive sentence। So students, this kind of question will be asked in your examination। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज रीराइट एज डायरेक्टिव, और वी कैन कॉल इट डू एज डायरेक्टिव। ब्रैकेट में आपको जो जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी हो उस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके आपको
ब्लैंक को कंप्लीट करना है, मीन्स सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। यूज आइदर और, आपको नाइदर नॉर की जगह आइदर और का यूज करना है। बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज्ड, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बच्चों आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मीनिंग चेंज होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हम नाइदर नॉर की जगह आइदर और का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस को नेगेटिव करना पड़ेगा। जैनुल आबदीन हैड नॉट, ऐसा नॉट लिखना पड़ेगा तो ही मीनिंग चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। हैड नॉट आइदर मच फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ। आइदर और की जगह, सॉरी, नाइदर नॉर की जगह आइदर और लिखना है, लेकिन नॉट लिखना पड़ेगा। अगर आप नॉट लिखोगे तो ही मीनिंग चेंज नहीं होगा, अदरवाइज द मीनिंग विल बी चेंज्ड। सेकंड क्वेश्चन इज, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मेक इट एफर्मेटिव। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफर्मेटिव करना है, तो एफर्मेटिव करना है तो आपको डू नॉट को निकाल देना है, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ये सेंटेंस ऐसा कह रहा है कि हर रोज़ वो कितने लोगों को फेड करती, खाना खिलाती, वो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। याद नहीं है मतलब मैं भूल गया हूँ, तो रिकॉल की जगह उसका ऑपोजिट लिख दो, फॉरगेट, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा और जो नेगेटिव सेंटेंस है वो एफर्मेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डू नॉट को निकाल दो, रिकॉल की जगह फॉरगेट लिख दो। आई फॉरगेट द, आंसर इज आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो उसका मीनिंग भी चेंज होगा नहीं। आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। आंसर नंबर 3, शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। मेक इट नेगेटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस करनी है, मतलब यहाँ पे आपको एफर्मेटिव का नेगेटिव करना, तो यहाँ पे भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। रिफ्यूज की जगह आपको डिड नॉट अलाउ लिखना पड़ेगा, तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, और डिड नॉट लिखोगे तो सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देयरफॉर द आंसर इज शी डिड नॉट अलाउ टू सर्व मी इन हर किचन। शी डिड नॉट अलाउ मी टू सर्व मी इन हर किचन, तो यहाँ पे रिफ्यूज्ड की जगह डिड नॉट अलाउ करके आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। इस एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो अस इज द ऑब्जेक्ट, उसको वी सब्जेक्ट बना देंगे। पास्ट फॉर्म लिए लिखा है, तो वी वर वॉच्ड by his wife from behind the kitchen door. Behind the kitchen door. We were watched by his wife from behind the kitchen door. तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. इस सेंटेंस को आपको सिंपल बनाना है। सिंपल बनाना है मतलब दो सेंटेंस का एक सेंटेंस करना है, जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एंड एक ही प्रेडिकेट लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। तो आपको इसको सिंपल बनाने के लिए इस तरह से आप लिख सकते हो, एट माई एज ऑफ 8 years
at my age of 8 years, comma, the Second World War broke out in 1939. So students, इस सेंटेंस को we have to do is we are making the it simple. इस सेंटेंस को हमने सिंपल बनाया. नेक्स्ट वन, I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री. यूज बोथ. यहाँ पे आपको बोथ का यूज करना है, तो कैसे लिखोगे? तो हम दोनों सैड हो गए, तो बोथ को इस तरह से लिख सकते हो, बोथ ऑफ अस, रामानंद शास्त्री, रामानंदा शास्त्री एंड माई सेल्फ फेल्ट वेरी सैड, एंड माई सेल्फ फेल्ट वेरी सैड. तो इस तरह से इस सेंटेंस में आप बोथ का यूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग बनाना है. तो क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है. तो यहाँ पे विल का नेगेटिव विल नॉट, पर शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, वांट दे. तो क्वेश्चन टैग का आंसर इस तरह से आएगा, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया. द आंसर इज वांट दे. वांट दे, फिर क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा और वांट दे के नीचे अंडरलाइन करनी पड़ेगी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट डाउन द आंसर इन सच अ वे. इस तरह से इतने क्वेश्चंस आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में, स्कूल की एग्ज़ाम में, पेपर स्टाइल के हिसाब से इतने क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ ग्रामेटिकल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ओके. तो ये हमारी दैट इज़ द ग्रामर प्रैक्टिस ऑफ यूनिट 6 माय चाइल्डहुड. ओके. what you have to do is you will have to write down the same unit number 6 in your notebook, the whole pamphlet in your notebook. Do the practice of this grammar, try to understand the rules of the grammar and try to solve like this. okay. आपको इसको नोटबुक में लिख के मुझे सबमिट करवानी है. हमने we have done यूनिट नंबर 1 to यूनिट नंबर 6, द ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 1 to 6. इस तरह से हमने प्रैक्टिस की. ठीक है. तो इस तरह से प्रैक्टिस की है. आपको लिख के मुझे नोटबुक में लिख के यू हैव टू सबमिट टिल टुमारो तक आपको उसको सबमिट करके मुझे भेज देना. ओके. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस यूनिट वेरी वेल एंड यू डू नॉट हैव एनी problem. If you have any query, you can contact me personally. Okay. Thank you. Bye.